اور اب خبریں تفصیل سے۔ تھائی لینڈ کے ایک ڈے کیئر سینٹر پر ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے کم از کم 34 افراد کو ہلاک کر دیا۔ جمعرات کو ملک کے جنوب مشرقی صوبے کے شہر نانگ بواک لامفو کے ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں مسلح شخص بندوق اور چاقو سمیت داخل ہوا اور وہاں موجود فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 34 افراد میں 23 بچے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مسلح شخص نے اپنے خاندان پر بھی فائرنگ کی، جس کے بعد خود کو بھی گولی ماری۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ سابق پولیس اہلکار تھا۔ رائٹرز نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ حملہ آور نے سب سے پہلے عملے کے 4 ارکان کو نشانہ بنایا، جن میں ایک حاملہ ٹیچر بھی شامل تھی۔ سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں کی لاشوں کو چادریں ڈال کر ڈھانپا گیا ہے اور ہر طرف خون نظر آ رہا ہے۔ قابل عظیم پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ آور فرار ہو گیا ہے اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، تاہم بعد ازاں اطلاع سامنے آئی کہ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی ہے۔ تھائی لینڈ ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں عوامی سطح پر اسلحہ رکھنے کی شرح کافی زیادہ ہے، تاہم بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات بہت کم ہیں۔ یونان کے ایک جزیرے کے قریب جمعرات کو تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رائٹرز نے کوسٹ گارڈز کا حوالہ دیتے بدھ کے بعد کشتی ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے جو بحیرہ ایجین کے جزیرے کے قریب پیش آیا۔ کوسٹ گارڈز کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں 40 افراد سوار تھے، جن میں سے 5 افراد کو ابھی تک بچایا جا سکا ہے۔ 15 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ 20 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ واقعے کے بعد یونانی ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کی مدد سے امدادی کام شروع کیا گیا، جبکہ اس علاقے میں موسمی حالات خراب ہیں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے امدادی کام میں مشکلات کا سامنا ہے۔ Last night we heard voices crying and asking for help. So there was a group of volunteers that we ran into the place, and we saw all these people that they were in a very stiff beach, and it was impossible for them to move. So the people here, they just dropped them ropes in order to help them to climb up the hill. Just before 5 or 6 days that we had incident, and also another one last month. It seems that this summer it seems that the route of these people comes through Kythira. I don't know why. Because the sea here is very hard, and it's a very dangerous route. I don't know who chose this route and put these people in such a danger. یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقے زیپوریزیا میں روس نے لگاتار 7 میزائل حملے کے وسط میں کئی مقامات سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کی طرف سے فراہم کردہ ویڈیو میں جنوبی یوکرین کے شہر زیپوریزیا میں ریسکیو ٹیم کو ایک تباہ شدہ رہائشی عمارت کے ملبے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خطے کے گورنر نے بتایا کہ جمعرات کو 7 روسی راکٹ رہائشی عمارتوں پر گرے، جس سے ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ زیپوریزیا روسی کنٹرول میں ہے اور ان 4 خطوں میں سے ایک ہے جسے روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الحاق کیا تھا۔ یہ حملے یوکرین کے صدر کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہوئے ہیں کہ ملک کی فوج نے روس کے غیر قانونی طور پر یہ علاقوں میں سے ایک کے کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ علاقائی حکام نے بعد میں صبح ایک اور راکٹ حملے کی اطلاع دی، لیکن فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ یوکرین کے 4 علاقوں کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد سے یوکرین کی فوج جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یوکرین کی فوج آہستہ آہستہ اپنے علاقوں کو روس کے چنگل سے چھڑا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے خیرسون میں مزید 3 علاقوں کو آزاد کر دیا، علاقوں میں برتری حاصل کر لی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔
रूस और यूक्रेन के बीच जंग की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन की अफवाज 3 इलाकों खैरसून, खारकेव और दोनेत्स्क में रूसी अफवाज की जानिब पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की अफवाज खास तौर पर खैरसून में तेजी से पेशकदमी कर रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अफवाज अपने दिफाई ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर मरकूज किए हुए है। उनका कहना है कि यूक्रेनी अफवाज ने इस हफ्ते दर्जनों ठिकानों को रूस के जाली रेफरेंडम के कंट्रोल से आजाद करा लिया है। यूक्रेन के शदीद हमलों के बाद दरियाए दनिप्रो के मगरिब में रूसी अफवाज अब खतरे में है। यूक्रेन का कहना है कि इसने उन इलाकों में बड़ी पेशरफ्त की है जिन्हें रूस अपने मुल्क में शामिल किया है। आलमी ज़राए अबलाग से मिलने वाली इत्तलात से पता चलता है कि शुमाल मगरिब में यूक्रेन की पोजीशन भी मजबूत हो रही है। इसी बीच रूस की जानिब से यूक्रेनी अफवाज पर हमले जारी हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक कैफ के जुनूब मगरिब में एक शहर पर धमाका खेज ड्रोन हमला किया गया है। इसके अलावा ज़ैपोरिजिया शहर में बमबारी की गई है। ताज़ा वाक़े में रूस ने ज़ैपोरिजिया पर 7 मिसाइल दागे हैं, जिसमें एक यूक्रेनी के हलाक होने और दर्जनों के जख्मी होने की खबर है। इधर अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद भेजने की यकीन दहानी कराई है। बाइडेन इंतजामिया ने कहा है कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर $625 मिलियन की फौजी इमदाद भेज रही है। रूस ने इस इमदाद पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इससे रूस के लिए हंगामी खतरा है और अमेरिका इस तनाज़े का हिस्सा बन रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की फौजी इमदाद भेजने के अमेरिकी फैसले से अमेरिका और रूस के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा बढ़ गया है। हालिया हफ्तों में जंग कई नाकामियों से दो चार होने के बाद पुतिन के साथी जंगी हिकमत अमली से नाराज हैं, जिसके बाद रूस का कहना है कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक दिफा करेगा, जिसके बाद उसने जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कान को भी रद्द नहीं किया है। यूक्रेन में अपनी फौजी ताकत में इजाफा करने के लिए पुतिन ने गुज़िश्ता हफ्ते पार्शियल मिलिट्री मोबाइलाइजेशन का ऐलान किया था। पुतिन ने 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऐलान किया, जिसके बाद 2 लाख से ज्यादा फौजी रूसी फौज में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में जारी होने वाली तस्वीर में नए रूसी फौजी तरबियत हासिल करते हुए भी नजर आए। पुतिन की जानिब से नए फौजियों की भर्ती के ऐलान के बाद पुतिन को मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया। इस जंग को 8 माह मुकम्मल होने को हैं, लेकिन जंग का इख्तिताम होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को को तवक्को है कि इस पर आयद की जा रही पाबंदियों का दबाव मजीद बढ़ेगा। पुतिन ने रूसी हुकूमत के अहदेदारों के साथ मईशत पर मीटिंग के दौरान कहा कि कंज्यूमर डिमांड कमज़ोर रही है और वो तवक्को करते हैं कि रूसी मईशत पर पाबंदियों के दबाव में शिद्दत आएगी। पुतिन ने कहा कि आमतौर पर रूस की सूरत हाल मुस्तहकम है, इसके साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि रूस पर पाबंदियों का दबाव रहेगा। Остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны. Ну, это и понятно, всем известно. Страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее. В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки. Но этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых कॉपरेशनल और लॉजिस्टिक्स цепочек। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि ईरान की हुकूमत की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ महलिक क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुजाहिरीन और नामानिगारों की बनाई हुई वीडियोज़, सिक्योरिटी हुकाम और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज़ के जरिए ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती ताकत के बेदरीग इस्तेमाल को बेनकाब किया। गुज़श्ता माह के आखिर में 22 साला खातून महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद फूट पड़ने वाले मुजाहिरों के खिलाफ ईरान की हुकूमत ने शूट गन्स और असॉल्ट राइफल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कम से कम 4 ऐसी वीडियोज़ का जायज़ा लिया जिसमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस शूट गन्स इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच को खदशा है कि ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के बरक्स हलाकतों की हकीकी तादाद कहीं ज़्यादा है। Hey,
फ्रांस ने अपने दो शहरियों सेसिल कोहलर और उनके साथी जैक पेरिस की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ईरान का कहना है कि दोनों फ्रांसीसी शहरियों को ईरान में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। इस सिलसिले में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने जुमेरात के रोज एक वीडियो नशर की थी, जिसमें दोनों को मुबैना तौर पर फ्रांसीसी सिक्योरिटी सर्विस की जानिब से काम करने का एतराफ़ करते हुए देखा गया। फ्रांस की वजारत खारजा ने वीडियो पर सख्त एतराज़ जताया है और ईरान पर बदतरीन आमिराना हुकूमतों के तर्ज अमल का इल्ज़ाम लगाया और इस बात की तस्दीक की फ्रांसीसी इंटेलिजेंस सर्विसेज के मेंबर थे। Je suis Cécile Collère, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. داستان دو افسر اطلاعاتی که با بسته‌هایی از پول पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक और उसके इत्तेहादी ममालिक ओपेक प्लस ने बुध को खाम तेल की पैदावार में कमी का फैसला किया। इस फैसले से अमरीकी सदर जो बाइडन को झटका लगा है, जो तेल की कीमतें कम रखने के लिए कई माह से कोशिश कर रहे थे। साथ ये बात भी सामने आ गई कि खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ बाइडन हुकूमत की सिफारतकारी किस तरह नाकाम हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि वियना में ओपेक के इजलास में जो कुछ हुआ, उसने इस सवाल का भी जवाब दिया कि यूक्रेन रूस जंग में अरब ममालिक कहाँ खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक और उसके इत्तेहादी ममालिक ओपेक प्लस ने बुध को खाम तेल की पैदावार में वियना में ओपेक के सदर दफ्तर में होने वाली मीटिंग में फैसला किया गया कि तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल यौमिया कमी की जाएगी। ओपेक प्लस का कहना है कि यह कदम खाम तेल की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि हालिया महीनों में आलमी कसाद बाजारी का खतरा गहरा हुआ है और तेल की कीमत में कमी हुई है। साल 2020 के बाद ओपेक और उसके इत्तेहादियों की तरफ से पैदावार में ये सबसे बड़ी कटौती है। माहिरीन का मानना है कि जब मार्केट में खाम तेल की पैदावार कम होगी तो दुनिया में तेल की किल्लत होगी और कीमत में इजाफा होगा, यानी आने वाले वक्त में तेल की कीमतों में इजाफे का हर सूरत इम्कान है। कि सऊदी अरब और रूस के ग्रुप ओपेक प्लस के इस ऐलान का ताल्लुक सिर्फ बढ़ती कीमतों से नहीं है, बल्कि सियासी मकसद भी कारफरमा है। इस फैसले से अमेरिकी सदर जो बाइडन को झटका लगा है, जो तेल की कीमतें कम रखने के लिए कई माह से कोशिशें कर रहे थे। इसके साथ ये बात भी सामने आ गई कि खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ बाइडन हुकूमत की सिफारतकारी किस तरह नाकाम हुई है। ओपेक प्लस का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि एनर्जी यानी तेल और गैस रूस यूक्रेन जंग में अहम किरदार अदा करने वाले फैक्टर बताए जा रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि बाइडन को अपनी खारिजा और इक्तिसादी पॉलिसी के है। बाइडन ने 3 माह पहले जुलाई में सऊदी अरब का दौरा किया था और इस दौरे का बुनियादी मकसद सऊदी अरब को तेल की पैदावार बढ़ाने पर आमादा करना था। बाइडन ने सऊदी अरब से भी ऐसा ही करने को कहा था, लेकिन सऊदी अरब की क़यादत में ओपेक के हालिया फैसले से जाहिर होता है कि बाइडन के दौरे का सऊदी अरब पर कोई असर नहीं हुआ। ओपेक का नया फैसला अमेरिका के तवक्को के बिल्कुल बरक्स है। साथ ही यह मगरबी ममालिक के लिए भी धचका साबित हुआ है, क्योंकि वो रूस पर पाबंदियों के जरिए उसकी आमदनी को कम करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओपेक के इस फैसले ने एक तीर से 3 निशान लगाए हैं। इससे अमेरिका की मुल्क खारिजा इक्तिसादी पॉलिसी और यूक्रेन की जंग मुतासिर होगी। चंद रोज पहले बाइडन इंतजामिया ने तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल कमी के ओपेक के फैसले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जो बाइडन के सऊदी दौरे के बाद यह कयास आराइयां की जा रही थी कि सऊदी अरब अपनी पैदावार में 7,50,000 बैरल यौमिया इजाफा करेगा, लेकिन अब वो पीछे हट गया है। सऊदी अरब का कहना है कि आलमी कसाद बाजारी के खदशात के बाइस तेल की कीमतों में कमी हो रही है। खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल से गिरकर $80 फी बैरल तक पहुंच गई, जिसकी वजह से तेल पैदा करने वाले ममालिक को आना पड़ा। इसलिए सऊदी अरब को यह फैसला करना पड़ा। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद की तो खलीजी ममालिक की अहमियत मजीद बढ़ गई। पाबंदियों ने अमेरिका और यूरोप में गैस और तेल की कीमतों में आग लगाई और इससे बाइडन की मकबूलियत में कमी आई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि वियना में ओपेक के इजलास में जो कुछ हुआ, उसने इस सवाल का भी जवाब दिया है
कि यूक्रेन रूस जंग में अरब मुमालिक कहां खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरतानिया में बिजली के नेटवर्क्स के ऑपरेटर्स ने खबरदार किया है कि आने वाले महीनों में और कारोबारी मकामात की बिजली बंद हो सकती है। नेशनल ग्रिड ने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन अगर बरतानिया बाकी यूरोप से ज़रूरी बिजली और पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दरकार गैस दरामद नहीं कर सकता तो उसे 3 घंटे तक बिजली काटना पड़ सकती है। पावर ग्रिड ने कहा कि सर्दियां मजीद तवील हुई तो बिजली की कटौती का इम्कान मजीद बढ़ जाएगा। बिजली का ये बहरान रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से पैदा हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी। इससे कबल बरतानवी हुकूमत ने कहा था कि तवानाई की कमी के बाद कटौती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तहम बरतानिया जेम ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला तवानाई के बहरान को मजीद गहरा कर सकता है और बरतानिया को गैस सप्लाई एमरजेंसी में डाल सकता है। गैस की फराहमी के बढ़ते हुए बहरान के बाद बिजली घरों को गैस की फराहमी मुतासर होगी, जिससे बिजली की पैदावार भी मुतासर होगी। बिजली की अदम फराहमी की वजह से बिजली कंपनियों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और इसकी वजह से उन्हें माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार जोसेफ बोरेल ने 2 रियासती हल की हिमायत के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की कहा कि फ़िलिस्तीनी इलाकों की सूरत हाल तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो ब्रुसेल्स में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान क़याम अमन की कोशिशों को बहाल करने और फ़िलिस्तीनी इलाकों की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। सन 2012 के बाद ये पहला मौका होगा जब यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ एसोसिएशन काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद की। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने मीटिंग के आगाज़ में कहा कि हम उन कुछ मखसूस मसाइल के बारे में वाज़ेह और खुलकर बात करेंगे जो हमारी तशवीश का सबब हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल और मशरक़ वस्ता अमन मसाई के बारे में बात का शिकार है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइली गासिबाना पॉलिसियों की वजह से इंसाफ और बैनुल अक़वामी कानून पर मबनी अमन के हुसूल में हमारा एतमाद ख़त्म हो रहा है। We will also discuss about the consequences of the Russia's aggression against Ukraine. In that moment, democracies have to join our forces in order to face the consequences of this war. But also, we will discuss frankly and openly about some specific issues of our mutual concern. I am talking about the situation on the Palestinian territories and the Middle East peace process, which is stalled. 44 यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने जुमेरात को मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के खिलाफ मुत्तहिद मौक़िफ़ था, क्योंकि तनाज़ात की वजह से तवानाई के बहरान और बुलंद अफरात ज़र ने उनकी मईशतों को तबाह कर दिया, जो कि आइसलैंड से लेकर तुर्की तक फैले हुए हैं। इस मीटिंग में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिनियान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलोफ भी शामिल थे। पहला मौका तुर्की और आर्मीनिया ने सफारती ताल्लुकात कायम करने और मामूल पर लाने की कोशिशों को जारी रखने की साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी के इफ्तिताही सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक बल्कान और मशरक़ी यूरोप में दिलचस्पी रखने वाले शराकतदारों के साथ साथ हमसाया ममालिक जैसे कि बरतानिया, जो यूरोपीय यूनियन से निकलने वाला वाहिद मुल्क है, और तुर्की शामिल हैं। अदब का नोबेल इनाम फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा एनी एरोनॉक्स को स्वीडिश अकादमी में दिया गया। फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा 2022 का अदब का नोबेल इनाम दिया गया। इस पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए एनी एरोनॉक्स ने लिखा कि लिखना एक सियासी अमल है जो समाजी अदम मसावात को देखने के लिए हमारी आंखें खोलता है। एनी एरोनॉक्स 1940 में पैदा हुई थी और नॉर्मंडी के छोटे से कस्बे वियोट में परवरिश पाई, जहां उनके वालिदैन का मुश्तरका ग्रोसरी स्टोर और कैफ़े था। उनकी तसनीफ़ का रास्ता तवील और मुश्किल तरीन था। नोबेल कमेटी हर साल इनामात जीतने वाले फ़र्द के नामों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू करती है। कमेटी मजमूई तौर पर 6 ज़ुमरों तिब, माशियात, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, अदब और देती है।
नेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल वुमेन्स टीम का सिलेक्शन कैंप श्रीनगर में शुरू हो गया है। कई रियासतों के खिलाड़ी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कैंप में शरीक हैं। पेश एक रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से व्हील चेयर बास्केटबॉल खातून खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए मौजूद हैं। खातून खिलाड़ी नवंबर से शुरू होने वाले ICRC टूर्नामेंट सिलेक्शन के लिए फाइनल स्क्वाड में 12 खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए मुकाबला सख्त है। सिलेक्शन कैंप के इनेकाद में वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बास्केटबॉल फेडरेशन की मदद कर रहा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर नुसरत गुल ने VMS ओहदेदारों के साथ कैंप का इफ्तिताह किया। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर रहे हैं नोएडा दिल्ली के पास। वो 5 से 12 नवंबर तक है। तो यहाँ पे हम 1 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद हम नोएडा शिफ्ट होंगे जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है, और हम लोग उधर प्रैक्टिस करेंगे और टूर्नामेंट में पार्ट लेंगे। इंडिया से गोल्ड मेडल का उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर लेके आएंगे, पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे और अपना बेस्ट करेंगे। सिलेक्शन कैंप में हिस्सा लेने वाली खातून व्हील चेयर खिलाड़ी इंतजामात से खुश हैं और इनमें से अक्सर ने पहली बार कश्मीर का दौरा किया है। कैंप में जम्मू कश्मीर से इंशा बशीर समेत 2 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और दीगर रियासतों के खिलाड़ी भी कैंप में शरीक हैं। ऑब्वियसली प्राउड फील कर रही हूँ एज ए होस्ट। दिस टाइम पे फर्स्ट टाइम JNK होस्ट कर रहा है सिलेक्शन कैंप को, और आगे जाके इरादा यही है कि बेस्ट करे अपना और भी लड़कियों को इंस्पायर करे। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था, दैट टाइम पे कोई गर्ल थी नहीं और चीज़ों के साथ लड़ना पड़ा। अब गर्ल्स कांटेक्ट कर रहे हैं, सीइंग मी फीचर्ड ऑन मीडिया एंड ऑल, जिसमें एक इशरत भी बाद में आ गई और आज वो बहुत अच्छा कर रही है। वी हैव ऑल गुड कम्युनिकेशन विद द टीम, वी हैव गुड टीम एंड वी आर ऑल ऑलरेडी फ्रेंड्स, सो वी हैव गुड। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कभी कश्मीर आ सकते हैं करके, सो अभी कश्मीर आने के बाद बहुत खुशी है। एंड टीम के बारे में बता रहे तो नामुमकिन है, बिकॉज टीम तो बहुत ही मस्त है। एक्सपेक्ट करते उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ हो या जो भी मतलब लाइक टीम हो या अकोमोडेशन हो या। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 5 नवंबर से नोएडा में व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद कर रही है। में 3 टीमें भारत, नेपाल और कंबोडिया हिस्सा ले रही हैं और मर्दों का व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी होगा। इस कैंप में हर खिलाड़ी के दर्द और शान शौकत की कहानी है। ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स ने इनके बेजान आज़ा में जान भर दी है और जिंदगी के हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। BMS श्रीनगर में ट्रेनिंग कर रहे ये खिलाड़ी आम नहीं, ये खास है। और कहीं ये मत सोचिएगा कि ये व्हील चेयर पे हैं, ये बाल पे झपटते हैं और बास्केट का निशाना कभी नहीं चूकते। ये खिलाड़ी जब मैदान में पहली बार आए होंगे तो इनका सलाम, उन्होंने पहला कदम तब उठाया था। आज ये मुल्क को रोशन करने निकले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उम्मीद करेंगे कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में आके मुल्क का नाम ऊपर रखें, मुल्क का झंडा ऊपर रखें। इन लोगों को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, इनको शाबाशी की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा करके दिखाया है। एक मुश्किल हालात से निकलकर पहले मैदान में आना और फिर ये फैसला करना कि हमें सिर्फ अपना नहीं, अपनी स्टेट का नहीं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, ये सलाम के काबिल है। कैमरा पर्सन आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने आर्ट्स सेक्टर से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खोलने का ऐलान किया है। इस सेंटर को अपनी मां को वक्फ करते हुए ईशा अंबानी ने इस सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NMACC रखने का ऐलान किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में यह सकाफती मरकज होगा। सकाफती सरगर्मियों के लिए वक्फ इस 3 मंजिला इमारत में विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ ग्रैंड थिएटर्स भी होंगे, जिसे कौमी और बैनुल अक़वामी फनकारों को जहन में रखकर डिज़ाइन किया गया। NMACC 30 मार्च 2023 को होगा, जो कई दीगर प्रोग्रामों के साथ 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा के साथ फैशन से मुताल्लिक बहुत से प्रोग्राम होंगे। इस सेंटर के थिएटर में 2000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। दुनिया आज में फिलहाल इतना ही। आदाब।